Assalamu alaikum. I'm Abdul Sattar, your chemistry tutor. Dear friends, I welcome all of you. I warmly welcome all of you in today's lesson. You know that we are in the process of developing the concepts about the organic chemistry, and these courses are definitely for the class 10. जो कि हमारी फ्रेश क्लासेस हैं 10th क्लास उनके लिए सिलेबस है और 10th क्लास के सिलेबस का जितना हिस्सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका एक पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट दी portion of the organic chemistry as well. यानी जो आज का लेसन है that's also related to the organic chemistry. In today's lesson, friends, we will go to discuss two major compounds of the basic compounds of organic chemistry. They are basically the hydrocarbons, and we will go to discuss the chemistry of the methane and the ethyne. Ethyne, that's commonly called as acetylene. जो आज हम दो compounds discuss करेंगे जिनकी हम मुख्तलिफ चीज़ें discuss करेंगे about these compound, that will be the methane, the normal compound जो हमारे natural gas के अंदर main constituent होता है, और उसके साथ साथ हम discuss करेंगे another compound and that is also a very important compound and that is the acetylene. जो कि दोनों compound कहीं न कहीं आपने ज़रूर देखे नहीं होंगे तो सुने ज़रूर होंगे. We are going to discuss these compound and what the things we will go to discuss about these compound. Come with me and you will see the learning outcomes of today's lesson. Okay, here is the main topic of today's lesson and that is the chemistry of the methane and the ethyne. Ethyne that we commonly call as acetylene. यानी आज हम दो compound discuss करेंगे, उनकी chemistry को discuss करेंगे. One will be the methane and the other one will be the ethyne. Okay, here are the learning outcomes of today's lesson. Dear friends, as you can see on your screens, students will be able to describe, by the end of the lesson, we will be very much able to describe the preparation, properties and finally we will go to discuss the uses of the methane as well. Second जो हमारा आज का main learning outcome है, that is to describe the preparation, properties and uses of the ethyne or commonly that we call as the acetylene. So these are the major learning outcomes of today's lesson that we will go to discuss the chemistry of in generally the chemistry of the methane and the second one will be the chemistry of your ethyne. Dear friends, methane, that is a very common substance, you know that this is present in the natural gas जो हम सुई गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं उस गैस के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है दैट्स ऑफ द मीथेन एंड दैट रेंजेस फ्रॉम 80 टू अबाउट 90 टू 95% जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उस नेचुरल गैस के दे आर कंपोज्ड ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल्स. सो methane why primarily it was not called as a methane, its older name is marsh gas because it was coming out from the marshy places. Marshy places में से ये come out होता था in the form of bubbles, that's why it was called as a marsh gas, but now it's normally called as a methane molecules. And methane we are going to discuss its chemistry. First you can see that what we have got in the form of the introduction. Just let me to select a color. Okay, now you can see on your screens that the methane is the simplest compound among the hydrocarbons. यानी जितने भी hydrocarbons हैं सबसे आसान तरीन सबसे simplest जो compound आपके पास available होगा that is the molecules of the methane. It's found in marshes where it is formed by the decay of the organic matter, hence its name as the marsh gas. यानी previously it was called as a marsh gas because it was obtained from the marshy places. दलदली जो इलाके होते थे उनमें ये मौजूद होता था इसलिए उसका नाम रखा गया that's called as a marsh gas. Methane also issues out from petroleum wells with other gases and the mixture is termed as the natural gas. Natural gas consists of about 80 to about 95% मुख्तलिफ places के थ्रू जो हमें गैस मिलेगी उनमें से तकरीबन 80 to 95% जो मीथेन पॉसिबली मौजूद हो सकता है आपके नेचुरल गैस के अंदर. Okay, and you know that natural gas जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सुई गैस that's also a very major part of our life now because you know that we are burning it in the form of the CNG जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ हम घर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए that's also the major constituent of your natural gas that is the methane one. Now first we will go to see that how the methane will be prepared in the laboratory. If you are in the lab and you want to prepare the methane, how you can prepare this one out, you can prepare in the form of this one. Here you will see that
फर्स्ट विल गो टू डिस्कस द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन, यानी जो लेबोरेटरी में हम बैठे हैं और प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो हम कैसे बनाएंगे. मीथेन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय रिएक्टिंग इट विद लाइम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली उसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे एंड द रिएक्शन विल बी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, यानी सोडियम एसिटेट को अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द you can say methane and other product will be sodium carbonate. We will go to see it in that detail कि ये कैसे reaction take place करेगा. Here you can see that is the methane is prepared in the laboratory by the decarboxylation. उस process का जो नाम रखा गया है that is called as a decarboxylation of sodium acetate. यानी सोडियम एसिटेट सॉल्ट होगा, उस सॉल्ट को जब डीकार्बोक्सिलेट करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसका रिमूव करेंगे, देन द मीथेन विल बी प्रिपेयर्ड. मिक्सचर ऑफ ड्राई सोडियम एसिटेट एंड ड्राई सोडा लाइम, that's another compound that's actually the mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. उन दोनों का fused mass जो होता है that's called as the dry soda lime. उस soda lime के साथ जब उसको हम heat करेंगे then you will obtain the methane molecules. Now how you can do this? You can do this in this way. Chemical equation आपको बहुत आसानी के साथ बता सकती है कि how this compound is going to be generated in the laboratories. If you are in the lab, methane will be prepared by this method. This compound is what we call as a sodium acetate. This is sodium acetate. When this is going to be treated with dry soda lime, that is dry soda lime, fused mass of sodium hydroxide and calcium hydroxide will be called as the dry soda lime. Actually the reaction will take place between sodium hydroxide and the sodium acetate and you will obtain the compounds that is the methane molecules, and another product will be in the solid state or in molten form, that is sodium carbonate will be generated during this reaction as well. So this is a very simple reaction that you can do this in your laboratories, यानी आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको लेबोरेटरीज के अंदर. अगर आपके पास सोडियम एसिटेट का सॉल्ट अवेलेबल है, आप सोडा लाइम प्रोड्यूस करेंगे, उस सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे विद सोडियम एसिटेट, देन मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी कलेक्टेड एंड अदर प्रोडक्ट विल बी योर सोडियम carbonate. If I go to discuss it in a detail, then I can show you here how this reaction takes place. Okay, here you can see this is CH3COONA. This is what we call sodium acetate. When this is going to be heated with sodium hydroxide, actually it is not just sodium hydroxide, it is सोडा लाइम. इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. उनको फ्यूज करके मास बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द सोडा लाइम. व्हेन इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड, देन व्हाट हैपेंस दैट दिस पोर्शन विल बी सेपरेटेड आउट. ये पोर्शंस सेपरेट आउट हो जाएंगे. हाइड्रोजन विल गो टू कंबाइन विद CH3 एंड देन CH4 विल बी प्रोड्यूस्ड. दैट इज CH4 will be produced in this way, and another product that is the sodium carbonate, Na2 and CO3 will be united together to form Na2CO3. This is the way the methane is going to be generated in the laboratory with the help of the sodium acetate, जो कि salt होगा acetic acid का, और उसको जब हम soda lime के साथ treat करेंगे, heat करेंगे उसको, then it is going to be converted into the form of the methane and the sodium carbonate will be generated. Okay, and now another method with which the sodium methane molecules can be generated, that is with the help of the reduction of the alkyl halides. Now हमने last time discuss किया था जब हमने alkanes prepare की थी, यानी जनरल जो मेथड से preparation of alkanes के लिए, उसमें हमने देखा था कि जितने भी alkanes हैं जनरली सारे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं with a general method, and that general method was by the reduction of the alkyl halide. अल्काइल ग्रुप आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप छोटे से छोटा अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा ग्रुप हम यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी द अल्काइल ग्रुप, दैट विल बी द मिथाइल ग्रुप. उसके बाद इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है. जिस तरह का आप अल्केन प्रोड्यूस कराना चाहें, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आप उस तरह का अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे उस अल्काइल हैलाइड के अंदर. एंड देन when the reduction of that alkyl halide will take place, then you will obtain the alkane molecules. इसी तरह से मीथेन को प्रोड्यूस कराने के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल हैलाइड, जो कि simply we call it as the alkyl halide. उस alkyl halide को हम करना क्या है? When the methyl halides are reduced by nascent hydrogen,
यानी जो हाइड्रोजन हम यूज करेंगे रिडक्शन के लिए, दैट शुड बी इन द nascent form in the atomic state, and that atomic state of the hydrogen which is going to be generated during the reaction. रिएक्शन के दौरान खुद ब खुद हाइड्रोजन के एटम्स जनरेट होंगे और उनका नाम रखेंगे, they will be called as a nascent hydrogen, यानी newly born hydrogen will be called as a nascent hydrogen. So here what happens that nascent hydrogen is going to be generated. अब nascent hydrogen को जनरेट कराने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर हम यूज कर सकते हैं अदर जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो ये हो सकता है कि सोडियम और अल्कोहल को यूज कर सकते हैं, या जिंक कॉपर कपल को यूज कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर. ऑल दीज पॉसिबिलिटीज विल प्रोड्यूस अ नेसेंट हाइड्रोजन. ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, चाहे आप डायरेक्टली जिंक और डाइल्यूट HCl को इस्तेमाल करें, चाहे सोडियम को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल करें, सोडियम मेटल को डेफिनेटली, या फिर हम जिंक कॉपर कपल एक एलॉय होगा उसको यूज कर सकते हैं विद रिएक्टिंग बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर. देन ऑल दीज पॉसिबिलिटीज विल प्रोड्यूस अ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जो कि एटॉमिक स्टेट में होगा, एंड दैट एटॉमिक स्टेट हाइड्रोजन इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन दैट डायरेक्टली अटैक्स ऑन द अल्काइल हैलाइड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द फॉर्म ऑफ द अल्केन. वो उसके ऊपर अटैक करेगा जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा, जैसे कि यहां पे हमने इस्तेमाल किया है मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि हमें मीथेन प्रोड्यूस कराना है. अगर मुझे इथेन प्रोड्यूस कराना होता तो मैं क्या यूज करता? इथाइल क्लोराइड यूज कर सकते थे, इथाइल ब्रोमाइड यूज कर सकते थे, इथाइल आयोडाइड यूज कर सकते थे. तीनों हेलोजेंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करके और हम प्रोड्यूस करा सकते हैं आपका कंपाउंड दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ द अल्केन. जी फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. Stay with us. वेलकम बैक. जी फ्रेंड्स, ब्रेक्स पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, और हमने देखा कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं मीथेन को लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ सोडियम एसिटेट. उसको हम लाइम सोडा लाइम के साथ उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एंड यू विल ऑब्टेन द मीथेन मॉलिक्यूल्स. सिंपल रिएक्शन. Another reaction that's a general actually preparation of all alkanes, as methane is a part of the alkane, first member of the alkane, you can prepare it with the help of the reduction of alkyl halides as well. जो हमने यहाँ पे compound select किया है, as I told you before we were on the break, जो हम reaction discuss कर रहे थे, that was methyl bromide को जब हम reaction करवाएंगे with a nascent hydrogen, and you know that nascent hydrogen is a atomic hydrogen which is produced during the reaction. reaction के दौरान produce होगा, जैसे कि for example इसमें से कैसे produce होगा? जब जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, पहले रिएक्शन ये दोनों आपस में करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, एंड द कंपाउंड प्रोड्यूस आर जिंक क्लोराइड बनेगा, और उसके साथ साथ 2H प्रोड्यूस होंगे. ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन जनरेट होता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो भी एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज ए नेसेंट हाइड्रोजन. यानी एटॉमिक हाइड्रोजन जरूर होता है, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं बनाते, हम रिएक्शन के दौरान नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसको प्रोड्यूस कराते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए नेसेंट हाइड्रोजन. न्यूली बोर्न हाइड्रोजन कैन बी कॉल्ड एज द नेसेंट हाइड्रोजन. दिस नेसेंट हाइड्रोजन अगेन as this is highly reactive, जब उसके पास कोई चीज अवेलेबल होगी रिएक्शन कराने के लिए, तो it will immediately act on that one, as the methyl bromide is over there, so this hydrogen will combine with this one. एक हाइड्रोजन CH3 के साथ कंबाइन होकर CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी दूसरा हाइड्रोजन Br के साथ कंबाइन होकर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस इज another method that can be utilized for the preparation of the methane as well. Okay friend, another method is also available with us, and this method can be utilized in the laboratory as well, but first we have to prepare the aluminum carbide. Aluminum carbide compound on hydrolysis, when it is going to be reacted with water, जब उसको water के साथ reaction कराएंगे, then it can produce the methane molecules as well. Just for example, when aluminum carbide is going to be hydrolyzed, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द मीथेन, एंड अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल बी generated as well. So this is the way how to produce the methane
विद हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें अवेल करके मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स को हम यूटिलाइज करा के और हम मीथेन के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करा सकते हैं. एंड एज यू कैन सी हियर द रिएक्शन वी आर यूटिलाइजिंग हियर दैट इज द फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड. एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड को हम क्या करना है, हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है. जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, देन यू विल ऑब्टेन द मीथेन मॉलिक्यूल्स एंड द अदर प्रोडक्ट विल बी द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि मीथेन गैसियस स्टेट में है, ये सिस्टम में से बाहर चला जाएगा, बाकी एल्यूमिनियम कार्बाइड विल सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द मोल्टन मास. Okay friends, now we are going to see the properties of the methane. Methane is an important substance, as I told you earlier that this is a very important substance, but it has got a certain properties. As it is a gaseous substance and it is a covalent substance, so it will be less soluble in water. इसकी solubility पानी में जो है that's a very small one, very sort of the insoluble substance in water, but that can be you know dissolved in non-polar solvents, जो कि organic solvents हैं, जैसे ethyl alcohol है या ethers हैं या aldehydes हैं, ketones हैं, उनके अंदर हम इसको dissolve करा सकते हैं because their nature is same one as the nature of your methane, यानी उनकी bonding जो है वो similar है, that's why they can be dissolved more in non-polar as compared to the polar solvent. just like water जो है इसमें इसकी solubility low होती है, जो organic substances होंगे, organic solvents होंगे, उसमें इसकी solubility ज़्यादा होगी. so you can here see the first physical property जो methane की हम देख सकते हैं, it's a colorless and odorless gas with a boiling point of about -162 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मली जब हमारे घर में हम यूज़ करते हैं मीथेन को, तो उसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ किया जाता है जो कि जिसमें कोई हल्की स्मेल हो, ताकि पता चले कि कहीं से गैस लीक हो रही है. अदरवाइज जो मीथेन का अपना स्मेल है, नथिंग इज ओडरलेस गैस है, बिल्कुल इसमें कोई स्मेल नहीं होती, उसमें स्मेल ऐड की जाती है, यानी कोई ऐसा कंपाउंड इसमें ऐड किया जाएगा जिसमें थोड़ी सी स्मेल आती हो, उस कंपाउंड की वजह से आपको स्मेल आती हो. अदरवाइज द मीथेन मॉलिक्यूल्स, मीथेन गैस वेरी मच you can say an odorless, and you cannot see it as well because this is very much colorless gas. जो इसकी boiling point है that's a very low one and it has got -162 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो है वो boiling point है. यानी यूँ समझिए कि -162 पे जाके ये liquefy होता है. उस वक्त जब इस टेम्परेचर पे होगा तो ये boil करना शुरू कर देता है. इससे लो होगा तो it can be present in the liquid state as well. It is insoluble in water but soluble in organic solvent, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. It is one of the lightest gases, यानी जितनी हमारे पास गैसेस अवेलेबल हैं, एयर में खास तौर पे जो गैसेस अवेलेबल हैं, उनसे सबसे तकरीबन लाइटेस्ट जो है हीलियम के बाद दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन अगर अवेलेबल हो तो उससे थोड़ी सी हैवियर होगी. अदरवाइज बाकी तमाम गैसेस से लाइटर है बिकॉज इट हैज गॉट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओनली 16. कार्बन का 12 मास होगा और 4 हाइड्रोजन्स का ऐड करेंगे तो टोटल मास इसका 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा. इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस में मिलती है, और बहुत सारे तरीके नेचुरल गैस को खाली गैस फॉर्म में आ सकती है. जहां से भी पेट्रोलियम मिलता होगा उन वेल्स में से ये गैस ऑटोमेटिकली आती रहती है. दैट कंटेन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो नेचुरल गैस का होगा, दैट विल बी द मीथेन मॉलिक्यूल्स. Okay friends, now the chemical properties. Methane, you know, is a very such sort of compound that's a very low reactivity. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बट जो आपके अल्केन्स के कंपाउंड्स हैं, अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, ऑल ऑफ देम हैव दी लो रिएक्टिविटी विद डिफरेंट सब्सटेंसेस. इट मींस दैट मीथेन एज अ पार्ट ऑफ द एज अ मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन सीरीज इज हैज गॉट आल्सो अ वेरी लो रिएक्टिविटी विद डिफरेंट सब्सटेंसेस. यानी ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ बड़ी जबरदस्ती रिएक्शन करवाना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इस तरह नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता. यानी केमिनोफोर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑल ऑफ देम कैन नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद द मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. रूम टेम्परेचर पे कम से कम इनके रिएक्शंस नहीं होते. Methane can react but under different conditions. That for example it can be halogenated, यानी इसके साथ हमें हेलोजेंस को रिएक्शन करवा सकते हैं, क्लोरिनेशन इसकी करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स दी अल्ट्रावायलेट लाइट. सूरज की रोशनी में अगर हम इसको लेके या जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके अंडर इसको रख के हम रिएक्शन करवाएंगे, देन इट कैन रिएक्ट एंड इट्स रिएक्शन विल बी ऑल सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ द रिएक्शंस. यानी इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली, नॉट दी रिडक्शन टाइप और समथिंग एल्स, कुछ इस तरह की
रिएक्शंस इसके नहीं होंगे, एक एटम या एटम्स का ग्रुप आके इसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करा सकता है. यू कैन प्रिपेयर द कंपाउंड इन दैट वे. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिएक्शंस द मीथेन विल गिव you, we are going to discuss that one out. Here you can see in methane carbon hydrogen bonds are a strong sigma bonds, यानी सारे single bonds होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के, that's why they are very much stable, hence a large amount of energy is required to break these bonds. इन bonds को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की हमें दरकार होगी. Also the bonds in methane are almost non-polar, hence it's not easily attacked by both the electrophiles and the nucleophiles. ना तो इसके ऊपर कोई electrophile अटैक कर सकता है, ना ही normally इसके ऊपर कोई nucleophile अटैक करेगा. Therefore, methane is chemically quite inactive. Some important reactions of methane are given below, and here you can see the first reaction, that's a halogenation reaction. When methane when reacts with the halogens, for example, in presence of the sunlight, if you are using the direct sunlight, then an explosion will take place, and in the result you will obtain the carbon black and the HCl will be generated. But if the reaction takes place in a sunlight, in a diffuse sunlight, then smooth reaction can take place and you will obtain the different halides of the methane. मुख्तलिफ halides जो है वो methane के produce होंगे. As you can see here, methane reacts with chlorine in direct sunlight with explosive violence and carbon is going to be deposited. यानी directly अगर bright light में इसको उठा के हम reaction करवाएं, then you will obtain the carbon black and the HCl will going to be generated. But in the diffuse sunlight के अंदर जब रिएक्शन करवाएंगे या अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर इसको रिएक्शन करवाएं, देन वी विल obtain the different products depending के how much halogenation has taken place. जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके सामने रिएक्शन दिखाया गया है कि अगर हम क्लोरीनेशन मीथेन की कराएं, then what happens that at the first instance you will obtain मोनोक्लोरोमीथेन, यानी फर्स्ट टाइम जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा के एक क्लोरीन उसकी जगह पे जाएगा. ये तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स अवेलेबल हैं. व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, देन द रिएक्शन विल गो टू स्टॉप ओवर देयर एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी द इन विच कार्बन विल कंटेन द 4 क्लोरीन, यानी टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, दैट विल बी द क्लोरोमीथेन व्हेन इट रिएक्ट्स विद द क्लोरीन गैस. आगे मजीद रिएक्शन होगा, जब सेकंड हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो अगला प्रोडक्ट आपके पास आएगा, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन विल बी जनरेटेड. और उससे आगे जाएंगे तो फर्दर यानी third chlorine atom can be introduced into the methane molecule, and then another hydrogen will be removed and the product will be your ट्राइक्लोरोमीथेन, या जिसको सिंपली हम क्लोरोफॉर्म जो बोलते हैं, जो एक एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था पुराने ज़माने में, और उसका नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म. दैट इज CHCl3 इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म इन कॉमन जो उसका नाम है, और टेक्निकली जो आईपैक नॉमेनक्लेचर है उसके मुताबिक हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड द ट्राइक्लोरोमीथेन. So here you will obtain the trichloromethane when the third hydrogen of the methane is going to be eliminated or replaced with one other chlorine. आखिर में जब बाकी जो हाइड्रोजन रह जाता है इसको रिमूव करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा, दैट विल बी द टेट्राक्लोरोमीथेन विल बी generated. So this is the way how the chlorine, how the bromine can react with methane, और जो रिएक्शन होगा उसका नाम रखेंगे दैट्स कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ द रिएक्शन. अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो इसके मैकेनिज्म में हम इस वक्त रिसर्च नहीं करेंगे बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक. जब आगे जाएंगे सेकेंड ईयर की क्लासेस के अंदर तो हम इसके आपको डिटेल से मैकेनिज्म बता पाएंगे कि जो मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है दैट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू रिएक्शन टेक प्लेस कराएगा. बट राइट नाउ एट द मोमेंट वी can just see the hydrogens are going to be replaced with the chlorine, substituted with the chlorine. That's why the reaction is called the substitution type of the reaction with the methane. Another reaction that is the combustion of methane. That's a notorious reaction, you can say, a very famous reaction of methane जो हम आमतौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं, and you obtain a large amount of heat. ना सिर्फ घर में इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम बहुत सारी जगहों पे ये आपको पावर एनर्जी जनरेट कराने के लिए भी हम जो यूज़ कर सकते हैं मीथेन को, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी टर्बाइंस के जो है वो हम चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीथेन. तो बहुत सारी जगहों पे हम ये कंबशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, और कंबशन इज नथिंग बट व्हेन द मीथेन बर्न्स इन एयर.
मीथेन जब एयर में बर्न होगा तो क्या प्रोडक्ट्स आएंगी, यू नो दैट द प्रोडक्ट्स विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम पहले अपने लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो मीथेन है जब उसको बर्न किया जाता है एयर के अंदर, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो प्रोडक्ट बन गई जो कि नॉर्मली एयर में चली जाती हैं जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बट वी ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने जितनी भी कुकिंग वगैरह करते हैं आजकल, दैट्स विद द हेल्प ऑफ द दिस gas which is called as the natural gas. Now you can see methane burns in the presence of excess of air or oxygen forming carbon dioxide and water. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये दो प्रोडक्ट्स आएंगी. The reaction is highly exothermic and because of this methane is used as a fuel. Gee friends, now it's a time to take a short break again, so stay with us. वेलकम बैक जी फ्रेंड्स। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे द रिएक्शंस ऑफ मीथेन और हम देख रहे थे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। एंड यू नो दैट कंबशन में क्या होगा, यू विल ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटेड। लुक we are going to check what happens. The reaction is in front of you, that is methane reacts first with oxygen and converts to form into the form of carbon dioxide and water, and most importantly this affair of state will be generated, that's the heat will be generated during this reaction, and that's very important for this reaction. But if the limited supply of oxygen is there, अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है, तो फिर एक और रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय एक और कंपाउंड बनेगा कार्बन का, एंड दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड विद दैट वन द कार्बन सूट इज गोइंग टू बी आल्सो प्रोड्यूस्ड। इसलिए कहते हैं कि जो आपके किचन्स वगैरह हैं उनको वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। अदर चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन के ब्लैक पार्टिकल्स बनते हैं और पूरा किचन जो है वो ब्लैक सा फील होने लगता है कुछ टाइम के बाद। दैट इज़ द रीज़न वी शुड हैव दी किचन्स वेल वेंटिलेटेड। ओके, क्योंकि एक और रिएक्शन होगा, कब होगा, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन की वहाँ पे वेंटिलेशन कम हो, ऑक्सीजन कमी हो वहाँ पे आपका इर्द गिर्द, तो फिर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ कार्बन के ब्लैक पार्टिकल्स बनेंगे जो कि सूट के फॉर्म में निकलते हैं, यानी धुएं के फॉर्म में आपको वहाँ पे नजर आएंगे। दैट इज द रीजन दैट एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द मीथेन एंड द ऑक्सीजन। ओके, Another reaction of methane, that's a action with the steam. Steam के साथ अगर हम मीथेन को रिएक्शन करवाएं, and then you will obtain very important substances, that's a carbon monoxide, and the hydrogen is going to be generated. Another very important reaction of methane, that's a pyrolysis reaction, and pyrolysis means we are going to break the methane with the help of the fire, यानी हीट देके हम उसको डिकम्पोज कराएंगे। इन एब्सेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा ताकि मीथेन को जो है दोबारा बर्निंग ना हो जाए। इन एब्सेंस ऑफ एयर जब रिएक्शन कराएंगे, देन फॉर एग्जांपल 1200 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जिसके नतीजे में जो ऑब्टेन द कार्बन ब्लैक, एंड विद दैट व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी जनरेटेड। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूरिया, क्योंकि जब रिएक्शन टेक प्लेस करेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के अमोनिया प्रोड्यूस कराया जाएगा। अमोनिया को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इज गोइंग टू बी जनरेटेड, दैट्स कॉल्ड एज अ यूरिया, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट जो हमारे गैस की जनरेशन की डेली की होती है, दैट्स सेंट टू द जो हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहां पे दी जाती है, ताकि वहां पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस कराया जा सके विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन जो कि यहाँ से जनरेट होगी। जो कार्बन ब्लैक आता है इसकी भी काफ़ी अहमियत है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा जब हम इनकी यूजेस डिस्कस करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मेन रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद द मीथेन, जो हम नॉर्मली जो हमने देखे। उसके बाद थोड़े से इसके यूजेस हैं, जब इसको क्विकली अगर हम देखें, मीथेन इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल, जो पहला हम घर में आमतौर पे जो हमारा यूजेस है इसका, दैट इज द फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक
इसको कार्बन ब्लैक के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हम अभी रिएक्शन में देख के आए थे। हाइड्रोजन के साथ ये बनता है, जो कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये पेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम ब्लैक जो शू पॉलिशेस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल टायर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका। तो जो आपका कार्बन ब्लैक जनरेट हो रहा होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजर, दैट्स नॉट यूजलेस चीज, जो वो नहीं है, बहुत कारगर चीज है, उसको आगे जाकर यूज किया जाता है। मीथेन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जैसे क्लोरोफॉर्म है, अभी हमने देखा था, मेथनॉल बना सकते हैं हम, मेथनॉल बना सकते हैं, और उसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड जनरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द मीथेन। फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन ऑन लार्ज स्केल के लिए हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। मीथेन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड यूरिया एज वेल। ओके फ्रेंड्स, अनदर कंपाउंड दैट्स इथाइन, जो क्विकली मैं आपको बताता चलूं कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। लैब के अंदर हम बना सकते हैं इसको विद हेल्प ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड। जब उसको स्टीम के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा एसिटाइलिन C2H2 के मॉलिक्यूल्स। और काफी सारे मेथड्स हैं जिसमें फ्रॉम अल्काइल डाइहेलाइड्स बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मेथड है, जो कि अप्लाई करेंगे, पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली इस रिएक्शन के नतीजे में हम बना सकते हैं, जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे, और आपका 1,2-डाइक्लोरोइथेन अगर हमारे पास कंपाउंड हो, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं एसिटाइलिन, यानी जो इथाइन के मॉलिक्यूल्स हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। अनदर मेथड इज आल्सो देयर, दैट इज फ्रॉम द टेट्राहेलाइड्स। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर टेट्राक्लोरोइथेन हो, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन अगर अवेलेबल हो, और उसको जिंक के साथ हीट किया जाए, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ द एसिटाइलिन, और उसके साथ साथ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल सिंपल सा, कलरलेस गैस है, गार्लिक लाइक इसकी स्मेल होती है। उसके बाद ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, बट डिसॉल्व्स रेडिली इन एसीटोन। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है जी -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी इसके सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर जाएं तो फिर आप देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर हो सकता है, जिसमें आपको अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अल्केन, यानी अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका हाइड्रोजन का। उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, यानी हाइड्रोजन हेलाइड्स जो है इसके अंदर हम ऐड करा सकते हैं, जिसके फाइनली आपको जो प्रोडक्ट जैसे आएगा, दैट इज 1,1-डाइब्रोमोइथेन विल बी जनरेटेड व्हेन द HBr इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस कंपाउंड। एडिशन ऑफ हेलोजेंस करा सकते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, अगर हम क्लोरीन को रिएक्शन करवाएं, देन फाइनली यू ऑब्टेन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन प्रोड्यूस हो सकता है तमाम हाइड्रोजन्स को निकाल के, और उसकी जगह पे एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है इसके अंदर। जो आप उसकी इक्वेशन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, कि वाटर इज गोइंग टू बी एडेड इनटू इथाइन एंड यू विल ऑब्टेन द इंटरमीडिएट अनस्टेबल विनाइल अल्कोहल बनेगा, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। सिंपल यूजेस हैं इसके, इथाइन इज एम्प्लॉयड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। आपने देखा होगा कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस होता है, गैस की वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर, और ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। बाकी सिंपल यूजेस हैं कि इथाइन यूज्ड इन द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड बना सकते हैं। इथाइन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल, सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ द इथाइन which can be employed on the larger scale. Gee friends, that was all about the today's lesson, and we discussed today the chemistries of two important compounds, and the compounds were that the first one was the methane and the other one was your ethyne compound. Now I am going to check your comprehension कि आपने कितना इस lesson से हासिल किया, कितनी चीजें आप समझे। The multiple choice questions of today's lesson. Here is the first question for you. That is, which of the following gas is produced by dropping water on calcium carbide? Which of the following gas is produced by dropping water on calcium carbide? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर हम वाटर ड्रॉप करें तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? इज इट विल बी मीथेन, इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। मीथेन, इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगी जब हम कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर को ड्रॉप करेंगे। Second question of today's lesson: the reaction in which elimination of a hydrogen halide takes place from two adjacent carbon atoms is called hydrohalogenation, hydrogenation,
halogenation or dehydrohalogenation. The reaction in which elimination of a hydrogen halide takes place from two adjacent carbon atoms. अगर दो adjacent carbon atoms में से हम hydrogen halide को remove कराएं तो बताइए उस reaction का नाम क्या देंगे? Is it will be hydrohalogenation, hydrogenation, halogenation or dehydrohalogenation? Last question of today's lesson. Which of the following is produced when a mixture of sodium acetate and soda lime is going to be heated together? You have to tell us which of the following is produced when a mixture of sodium acetate and soda lime is going to be heated together. The first option is ethene, ethyne, ethane or methane. Dear friends, that was the last question of today's lesson, and that is all about today's lesson. I hope that you might have got a lot from this lesson. If you have any query, any question, you can ask us by SMS, by email, by calling us directly. Thank you so much for being with us. Have a nice time. Take care and Allah Hafiz.